हम पढ़ेंगे जकरिया 7 चैप्टर 8 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा तेरे द्वारा हमें ये वचन सिखाने के लिए हम विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Lagdo lirasiande, ledoria sekiande। जकरिया 7 चैप्टर 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से। द कैप्टिव्स इंक्वायर ऑफ फास्टिंग। जकरिया reproves that hypocrites their hypocritical fasting, they are exhorted to repentance, etc. And it came to pass in the 4th year of King Darius that the word of the Lord came unto Zechariah in the 4th day of the 9th month, even in Chesleo, when they had sent unto the house of God Sherezer and Regem-melech and their men to pray before the Lord, and to speak unto the priests which were in the house of the Lord of hosts, and to the prophets, saying, Should I weep in the 5th month, separating myself as I have done this so many years? Then came the word of the Lord of hosts unto me, saying, Speak unto all the people of the land and to the priests, saying, When ye fasted and mourned in the 5th and 7th month, even those 70 years, did ye at all fasts unto me, even to me? And when ye did eat, and when ye did drink, did not ye eat for yourselves and drink for yourselves? Should ye not hear the words which the Lord hath cried by the former prophets, when Jerusalem was inhabited and in prosperity, and the cities thereof round about her, when men inhabited the south and the plain? And the word of the Lord came unto Zechariah, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and show mercy and compassions every man to his brother, and oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor, and let none of you imagine evil against his brother in your heart. But they refused to hearken, and pulled away the shoulder, and stopped their ears, that they should not hear. Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law and the words which the Lord of hosts hath sent in his spirit by the former prophets. Therefore came a great wrath from the Lord of hosts. Therefore it is come to pass that as he cried and they would not hear, so they cried and I would not hear, saith the Lord of hosts. But I scattered them with a whirlwind among all the nations whom they knew not. Thus the land was desolate after them, that no man passed through nor returned, for they laid the pleasant land desolate. 8th chapter, 1st verse, introduction. Jerusalem's restoration. They are encouraged to the building by God's favor. 1st verse, again the word of the Lord of hosts came to me, saying, Thus saith the Lord of hosts, I was jealous for Zion with great jealousy, and I was jealous for her with great fury. Thus saith the Lord, I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called a city of truth, and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Thus saith the Lord of hosts, there shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem, and every man with his staff in his hand for very age. And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof. Thus saith the Lord of hosts, if it be marvelous in the eyes of the remnant of this people in these days, should it also be marvelous in mine eyes, saith the Lord of hosts. Thus saith the Lord of hosts, behold, I will save my
people from the east country and from the west country, and I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem, and they shall be my people, and I will be their God in truth, in righteousness. Thus saith the Lord of hosts, let your hands be strong, ye that hear in these days these words by the mouth of the prophets, which were in the day that the foundation of the house of the Lord of hosts was laid, that the temple might be built. For before these days there was no hire for man, nor any hire for beast, neither was there any peace to him that went out or came in, because of the affliction. For I set all men, every one against his neighbor. But now I will not be unto the residue of this people as in the former days, saith the Lord of hosts. For the seed shall be prosperous, the vine shall give her fruit, and the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew. And I will cause the remnant of this people to possess all these things. And it shall come to pass that as ye were a curse among the heathen, O house of Judah and house of Israel, so will I save you, and ye shall be a blessing. Fear not, but let your hands be strong. For thus saith the Lord of hosts, as I thought to punish you when your fathers provoked me to wrath, saith the Lord of hosts, I repented not. So again have I thought in these days to do well unto Jerusalem and to the house of Judah. Fear ye not. These are the things that ye shall do. Speak ye every man that the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth and peace in your gates. And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor, and love no false oath. For all these are things that I hate, saith the Lord. And the word of the Lord of hosts came unto me, saying, Thus saith the Lord of hosts, the fast of the 4th month, and the fast of the 5th, and the fast of the 7th, and the fast of the 10th shall be to the house of Judah joy and gladness and cheerful feasts. Therefore love the truth and peace. Thus saith the Lord of hosts, it shall yet come to pass that there shall come people and the inhabitants of many cities, and the inhabitants of one city shall go to another, saying, Let us go speedily to pray before the Lord, and to seek the Lord of hosts. I will go also. Yea, many people and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem, and to pray before the Lord. Thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, We will go with you, for we have heard that God is with you. हालेलुया। हम पढ़ेंगे जकरिया 7 अध्याय 8 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। झूठे उपवास की भर्त्सना। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किसलेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतल वासियों ने शेरेसेर और रेगेमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम
सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था, बंधुआई के कारण आज्ञा का उल्लंघन। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यह यों कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी न सुनूंगा, मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। यरूशलेम के पुनः निर्माण की प्रतिज्ञा 8 अध्याय पहले वचन से। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। यहोवा यों कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं का यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बुढ़िया बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन को नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण न तो आने वाले को चैन मिलता था और न जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे,
उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर न पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों में से मैं घृणा करता हूँ। इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाए। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूँ। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। कितना मज़ा आता है ये पढ़ने में, क्योंकि ये सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो आने वाला समय और बीता हुआ समय ऐसे समयों में पूरा हो चुका है। ओके, कितना सच्चाई है परमेश्वर के वचन में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, ये भविष्यवाणी की तरफ से हमारी सारी बुद्धि में इतना आनंद दिया तूने कि ये वचन हम समझ पा रहे हैं कि कुछ समय हो चुका है और कुछ समय आने वाला है ये भविष्यवाणियों का पूरा होने में। थैंक यू फादर, हमें फिट एंड फिक्स कर, इन वचनों के भेद और ज़्यादा हमें समझा, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 4 चैप्टर 13 वर्स से 22 वर्स, एजरा 6 चैप्टर। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 वचन से 22 वचन, एजरा की पुस्तक 6 अध्याय। हमने फैसला लिया है अकेले में पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय में 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को पढ़ना है। आप अपने तरीके से जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे फैसले के पीछे कारण ये है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारना चाहते हैं। जैसा परमेश्वर हमको बनाना चाहता है उसको हम अवसर देना चाहते हैं कि हमारे अंदर की बातें वो हमें प्रकट करके दिखाए और हमारा बदलाव हो जाए, और परमेश्वर चाहता है उस अवस्था में हम तैयार हो जाए। निश्चित है कि परमेश्वर के आत्मा ही का हमने सहारा लेना है, और ये निश्चित करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमें निश्चित लाभ के लिए इस्तेमाल करना है, इस वचन के लिए हमने उपयोग करना है। पवित्र आत्मा ही हमें लाभ देगा इन वचनों को सीखने का। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र पिता, हम विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, हमें फिट एंड फिक्स करो इन वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आओ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।